Hello students, I am Sushma Kataria from Suraj School Bhiwadi, and today in this video we'll discuss about 8th class chapter This is Jodi's Fawn. As we know that in our previous video we have discussed about the first part of this chapter, in which we have learned that Jordis and his father Penny was there in the forest, and suddenly the Penny was bitten by a rattlesnake, and to cure himself, to save himself, Penny killed Doe, and he used the liver and heart of Doe in on the place where the snake bite him, and he basically want to remove the poison from his body with the help of these two elements. And when Jordis was viewing all the things, and he find that uh, as the doe was killed, the little fawn, that means the deer baby, the baby was remain completely alone in the forest. Clear. And he cannot forget these element at all. He cannot forget anything about that fawn. So when he returned back home after some time, he was having a discussion with his father to take the fawn to their home. Clear. And father also gave him permission, because he was not a ungrateful person. He know that the because of the doe he was able to survive, and he was alive now, and it is their moral duty to take care of that fawn, the little baby deer. It is their moral duty to take care of that person, that animal. So they decide to take him to their home. Then, and they also have a discussion with his mother about it. So let's start with this video. Can I ride back with Midville? Midville is the name of the rider. Clear. And maybe he was having a horse, and he is their servant, or you can say the worker. So Midville, he said that, can I sit back on with Midville and go back to the forest and to find the fawn? He said, I will tell your ma. The father said that, tell your mother. And I said, you can go. According to the father said, you can go, but ask from your mother. Then Jody told everything about that fawn and about that doe to his mother, and his mother said that, okay, you are completely allowed to go. Well, for the pity sake, that means for the sake of pity, आप दया की भावना के कारण आप लोग प्लीज़ उसको लेके आइए. पा said it would be ungrateful to leave to it to strive. अगर वो कहते हैं कि अगर हम फ़ोन को अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं, if you they are not he doesn't have anyone with him, and he have to be alone and वो अकेला होगा, hungry होगा और डरा हुआ होगा. Clear. So it is not correct, and they decide to bring him बैक. ओके, तो फादर भी कहीं ना कहीं अपने परमिशन दे देते हैं टू टेक द फॉन टू देयर होम, एंड द मदर ऑल्सो गिव द परमिशन टू देम. देन मिडविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी. सो मिडविल जो है, उनका जो वर्कर है, वो कहता है कि ओके, वो मेरे साथ वापस आ सकता है. आई विल हेल्प हिम टू फाइंड इट. मैं उसकी हेल्प करूँगा, बिकॉज वो बच्चे को अकेला नहीं जाने देना चाहते. तो सो व्हाट ही सेड दैट मिडविल विल हेल्प हिम टू फाइंड दैट फॉन टू जॉडीज. Okay, she sat down with the pot helplessly. Well, you will go get back to your milk. We will got nothing else to feed it. वो कहता है कि आपके दूध जो है उसके अलावा हम उसको कुछ भी नहीं दे पाएंगे. So Widmill said, "Come on, boy. We are got not to riding." Okay, so what he said that Midville उसको कहता है कि okay, boy, come. Let's go and find that fawn. Miss Ma Baxter. Baxter is the name of her mother. ओके. बैक्स्टर आस्क नेशियसली, मतलब वो उसकी मदर जो है वो थोड़े से मदर एज अ मदर शी आस्क, कब कितनी देर लगेगी आपको, क्या आप डिनर तक वापस आ जाएंगे. दैट मीन्स शी वॉज क्वाइट कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज चाइल्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न शी वॉज आस्किंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू हिम. तो जो मिडविल है वो माउंटेड हिज जो मिडविल है वो उसको अश्योरेंस देता है दैट आई विल हेल्प हिम टू फाइंड दैट फॉन. ओके. He said to Midville, "Do you think the fawn still there? Will you help me to find him?" तो यहाँ पे वो जॉडीज जो है वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप मेरी प्लीज़ मदद करेंगे, आपको पता है कि फ़ोन वहीं होगा या कहाँ होगा. सो दीज आर द थिंग्स. सो द स्पोर्ट्स वर इन अ लाइन ऑन अ डो fawn
काउ सेज द स्पोर्ट्स आर एवरीवेयर एवरी विच वे। सो यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो हिरन का बच्चा है, जो डो है, जो डियर है, बेबी फॉन है, वो मेल है, क्योंकि जो फीमेल जो डियर होते डो होती है, जो डो होती है, वो क्या करते हैं, वो एक जगह पे नहीं, वो हर डायरेक्शन में जाते हैं, बट जो मेल फोन होता है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। ओके, सो जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट टू द फॉन। वो मतलब वो अभी भी उसके थॉट को हटा नहीं पा रहा था। दे पास देयर अबंडन क्लियरिंग। अबंडन मतलब वो ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो कोई भी नहीं जाता। ही सेड कट टू द नॉर्थ। वो जोड़ी, क्योंकि वो सोचता है कि जो हम शायद उसी डायरेक्शन में उस बच्चे को ढूंढ पाएंगे जिस डायरेक्शन में उनकी मतलब उनकी मदर की जो डेथ हुई थी। सो वो कहते हैं कि कट टू द नॉर्थ की साइड जाते हैं। तो मिडविल सेड ओके ही वॉज अप देयर pa got bitten by the snake। वो कहते हैं it was that direction when the father killed the doe and he was bitten by the snake। Suddenly Jody was unwilling to have Millward with him, but suddenly he find that Midville was he don't want Midville with him, because if the fawn was dead or could not be found, he could not have this डिसअपॉइंटमेंट सीन। अब एक्चुअली वो क्यों नहीं चाहता था कि मिडविल उसके साथ जाए, क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो उसको नहीं मिलता है, अगर उसको नहीं देख पाता है फ़ोन को, तो वो नहीं चाहता था कि उसका जो वो सैड एक्सप्रेशन जो है वो कोई भी देखे, वो डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा वाला जो एलिमेंट है वो कोई भी देखे। सो ही डोंट वांट दैट anyone see him in that way। so because of that reason जो जोड़ी था वो नहीं चाहता था मिडविल को अपने साथ ले जाना उसको ढूंढने में, क्योंकि अगर वो मर गया होगा, क्योंकि वो बहुत छोटा सा बच्चा था, फॉन जो है ही वॉज अ लिटिल बेबी, तो हो सकता है कि वो उसको या तो किसी ने मार दिया हो या फिर वो मर गया हो भूख के मारे। तो वो नहीं चाहता था, अगर उसको मरा हुआ मिलता है तो वो अपने वो निराशा उसको दिखाना नहीं चाहता था। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ही डोंट वांट दैट मिडविल उनके साथ आए। So and if the fawn was there he could not endure to share it। अब वो कहते हैं कि और अगर उसको फ़ोन मिल भी जाता है, अगर उसको ज़िंदा मिल जाता है और उसको ढूंढ भी लेता है, तो वो अपने उस फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन आएगा आपका, वाई ही डोंट वांट द मिडविल टू कम विद हिम, बिकॉज ही डोंट वांट टू शो इफ़ ही वाज नॉट एबल टू फाइंड द डियर द फॉन ही डोंट वांट टू शो हिज डिसअपॉइंटमेंट टू हिम, एंड इफ ही वाज एबल टू फाइंड हिम ही डोंट वांट टू शेयर हिज फीलिंग्स एंड हिज हैप्पीनेस विद एनीवन। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही डोंट वांट मिडविल टू बी विद हिम। Clear? He said it is not far now, but the scrub is very thick for a horse। अब यहाँ पे जो वो क्या कहता है कि जो आगे बहुत दूर नहीं है, लेकिन जो आगे का एरिया है उसमें घोड़े नहीं जा सकते। सो वी हैव टू बी ऑन आवर फुट, वी कैन मेक इट ऑन फुट। क्लियर? तो एक तरह से वो उसको रोकने के लिए कह देता है, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। वो लेकिन वो कहता है कि बट मुझे डर लग रहा है कि हो सकता है कि तुम खो जाओ जंगल में, और या फिर तुम्हें सांप काट ले और स्नेक बाइट यू टू, तो आई विल टेक केयर। तो यहाँ पे जॉडी कहता है नो आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन इफ़ ही वॉन्डर्ड लीव मी ऑफ राइट हेयर। तो वो कहता है कि आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं अपने आप उसको ढूंढ लूँगा कहाँ है वो। Okay, all right, but you take easy now. You know north here and the east is there. ओके, सो वो कहता है यहाँ पे वैसे तुम्हारे लिए इजी होगा क्योंकि तुम्हें पता है कि इधर नॉर्थ है इधर ईस्ट है। सो यहाँ पे वो कहते हैं सो लॉन्ग मिडविल आई एम ऑबलाइज्ड। तो वो कहता है कि आपने मेरा इतना साथ दिया, यहाँ तक आप मेरे साथ आए हैं मुझे लेके, सो आई एम वेरी ऑबलाइज्ड। ऑबलाइज्ड मतलब होता है कृतज्ञ होना, यानी कि वेरी थैंकफुल होना। ओके, ही वेटेड फॉर द साउथ एंड द हूव्स और टू द एंड। ओके, वो कहता है कि आप मेरा यहाँ पे जो साउथ के जो हूव्स हैं वहाँ पे उसके एंड में आप मेरी प्लीज़ वेट करें। आई विल कट टू द राइट। द स्क्रब वॉज स्टिल ओनली हिज ओन क्रैकिंग ट्विंग्स सराउंडेड अराउंड। अच्छा देखो, अब क्या हो रहा था कि जब वो फॉरेस्ट में जब जा रहा था कोई भी साउंड नहीं आ रही थी, लेकिन जहाँ जहाँ वो फुट स्टेप रख रहा था क्रैक हो रहे थे, जो ट्विंग हो रहे, ट्विंग मतलब जैसे जो अगर मान लीजिए
पत्ते जब आप फॉरेस्ट में चल रहे होते हैं, पत्तों के ऊपर आप पैर लगते हो, जो आवाज़ आती हैं, टहनियाँ जो छोटी छोटी टूटती हैं, उनकी जो आवाज़ें आती हैं, सिर्फ वो आवाज़ जो है, यानी कि जोडी जब चल रहा था उसके पैरों से जो चीज़ें दब रही थी, उनकी आवाज़ों के कारण ही वो जो साउंड है, वो जो पूरी सराउंडिंग है उसका साइलेंस टूट रहा था, यानी कि उसके अलावा कुछ और भी साउंड वहाँ पे नहीं आ रही थी। ठीक है। वाउंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, लेकिन उसको एक और भी चीज़ डर लग रही थी कि कहीं वो अपने डायरेक्शन में गलत तो नहीं जा रहा है। देन द बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। अब अचानक से उसको क्या नज़र आता है कि बजर्ड एक बहुत ही जैसा उसको कुछ बहुत ज़्यादा रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, बजर्ड होता है कि बहुत ज़्यादा धुआं सा उड़ना या धूल उड़ना, एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, कुछ ऐसा जो चीज़ें हैं फ्लैप करके, यानी कि फड़फड़ा कर हवा में चली गई। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, ओक्स मतलब एक काइंड ऑफ ट्री है। बजर्ड सेट इन द सर्कल अराउंड द कार्कस ऑफ डो, कार्कस होता है डेड बॉडी, ठीक है, डो मतलब हिरन। अब यहाँ पे जो बजर्ड्स है उसका मतलब क्या है कि जो जैसे बाज होते हैं, चील होती है, जिसको डेड बॉडी के जो मीट होता है उसको खाते हैं, ठीक है, मांस को खाते हैं। तो वो लोग वो क्या कर रहे थे, वो चारों तरफ उसके चारों तरफ बैठे थे, उसके डेड बॉडी के चारों तरफ बैठे थे, किसके, हिरन के, ठीक है। एंड दे टर्न देयर हेड्स टू द लॉन्ग स्कारवे नेक्स। अब उनकी जो गर्दन है, वो अपनी गर्दन को इधर उधर, अपनी जो बड़ी लंबी सी गर्दन है उसको वो इधर उधर घुमा रहे थे। हिज्ड एट हिम, और वो उसकी तरफ आवाज़ें निकाल रहे थे, यानी कि जॉडी की तरफ वो लोग आवाज़ें निकाल रहे थे। ही थ्रू हिज बुक एट देम एंड देन दे फ्लू अवे इनटू द एडजेक्टेंट ट्री। तो वो क्या कहते हैं, उसने क्या किया, उसने अपना एक एलिमेंट निकाला और उनकी तरफ फेंका, जिससे वो क्या होगा, जितने भी वो जो बाज थे, चील थी, वो उड़कर नियर बाय जो ट्री थे उनके ऊपर बैठ गए, ठीक है। एंड द डोर टू द कैरियन बर्ड्स मतलब होते हैं जो मांस खाने वाले बर्ड्स हो जाएंगे, जैसे चील हो गया, बाज हो गया, वल्चर हो गया, इस तरह के, ठीक है। ही पार्टेड द ग्रास इनटू एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन। अब वो क्या कहता है, उसने, उसको क्या लगता है कि शायद उसने जहाँ पे उसने फ़ोन को पहले देखा था, जब उसके फादर उसको किल कर रहे थे, तो जहाँ पे उसने फ़ोन को देखा था, वो उसी घास को हटाते हुए वो उसी डायरेक्शन में चला गया। It did not seem possible that it was the only yesterday। वो कहता है ऐसा देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये कल की ही बात है। The phone was not there। जो हिरन का बच्चा था वो वहाँ पे नहीं था। He circled the clearing there and there was no sound, no sign, no the buzzards cracked their wings, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वहाँ पे कोई भी निशान नहीं था, कोई भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कल की ही बात है। ऐसा लग रहा था कि बहुत पहले मैंने फ़ोन को यहाँ पे देखा था। अब जो बाज हैं, जो चील वो वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, दे आर जस्ट सिटिंग अराउंड द डेड बॉडी अगेन, ओके। सो he returned to the spot where he fawn had emerged and dropped onto the force. Suddenly he sent normal hoof prints मतलब पैरों के निशान होना। That night's rain was washed away all the tracks except those of cat and the buzzards। अब पूरे उसमें वो कहते हैं कि रात को जो बारिश हुई थी उसके कारण जो पंजों के निशान थे वो सारे मिट चुके थे, सिर्फ कैट्स के निशान थे और बजर्ड्स यानी कि जो मांस खाने वाले जो बर्ड्स थे उनके निशान थे पैरों के, और कैट मतलब आप समझ सकते हैं कि जो जंगली बिल्लियाँ होती हैं उनके निशान थे उन पे ज़मीन पर। Then the movement directly in front of him startled him so that he humbled backward. The fawn lifted his face to him। अब देखो अचानक से जो वो बर्ड उनको वो नज़र आ जाता है और वो क्या देखता है कि वो फ़ोन उसको नज़र आ जाता है, ठीक है। एंड देन द फोन लिफ्टेड हिज फेस टू हिम। अब फ़ोन जो है वो अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देख रहा है। It turned his head with a wide, wandering motion and shook him through with the stare of liquid eyes। उसकी आंखों में जो है वो पानी सा भरा हुआ था, लिक्विडी आइज थी उसकी थोड़ी सी, मे बी ही वॉज क्राइंग,
ओके, एंड वो अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख रहा होता है, एंड हिमसेल्फ एंड कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। अब वो लेकिन वो डर रहा था, जॉर्डी जो है वो सोच रहा था कि अगर मैं चलूँगा या अगर मैं आगे बढ़ूँगा तो हो सकता है कि यहाँ से भाग जाए। ही विस्पर्ड इट्स मी, वो थोड़ा बहुत धीरे से उसका आवाज़ करता है कि मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड हिज नोज, फ़ोन अपनी नाक उठाता है। सीइंग हिम he wrenched out the hand and laid it to the soft on his head। अब उसी में अचानक से क्या हुआ, जो जॉर्डी ने अपनी हाथ जो है उसकी नेक पर, उसकी गर्दन पर हल्के से फिराया, ठीक है। एंड ही मूव फॉरवर्ड ऑल फोर्स अंटिल ही कम क्लोज टू बिसाइड मी। अब वो क्योंकि छोटा बच्चा था, जैसे उसने उसकी गर्दन पे हाथ फिराया तो जो फ़ोन है वो धीरे धीरे सरकता हुआ उसकी बॉडी के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया। ओके, ही मूव्ड फॉरवर्ड एंड ही पुट हिज आर्म, उसने अपनी जो बाजुएं हैं वो उसके फ़ोन के बॉडी के चारों तरफ डाल ली। द लाइट कंपल्सिव पोज्ड हिम ओवर इट एंड ही डिड नॉट स्टेयर। अब लेकिन जो कन्वल्जन होता है कि बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाना, वो उसके जो धड़कनें हैं बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। हिज स्ट्रोक इट्स साइड एज जेंटली एज थ्रू द फॉन वर एज अ चाइना डियर। वैसे उसकी जो स्किन थी वो इतनी सॉफ्ट थी, उसको लग रहा था कि वो एक चाइना डियर, यानी कि एक वो जो टेडी बियर होता है ना, मखमली गद्दा टाइप, जैसे वो वैसा था। ही माइट ब्रेक इट। अब वो उसके हाथ वो बहुत नाजुक तरीके से अपने हाथों को उस पर रखा हुआ था, उसको लग रहा था कि कहीं अगर मैंने ज़्यादा टाइट पकड़ा तो वो कहीं टूट ना जाए। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज स्लीक मतलब होता है वो फिसलने वाली, चिकनी, एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट स्केंट ऑफ ग्रास। और उसकी बॉडी से कैसी स्मेल आ रही थी, हल्की हल्की ताज़ी घास की खुशबू उसके उसमें से आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, हिज लेग्स हंग लम्पली। उसने हल्के से उसको उठा लिया और उसके पैर जो है वो हवा में लटक रहे थे। एंड दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड होइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। वो जितना अपने बाजुओं में उसको उठा सकता था ऊपर, उतना उसने ऊपर उसको उठा लिया। He was afraid that it might kick and the blunt at sight and small of his mother। अब वो उसको एक डर लग रहा था कि अगर उसने अपनी मदर को देख लिया, यानी उसके डेड बॉडी को देख लिया, उसकी खुशबू भी आ गई, तो वो शायद उसको वहाँ पर उसको ले जाना उसके लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो रोना स्टार्ट कर देगा। एंड ही स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। सो ही स्ट्राइकिंग द क्लियरिंग एंड द पुश्ड हिम अवे इनटू द थिकेट्स। मतलब वो कैसे तरह से, इवन जो उसके पैर थे, क्योंकि उसके पैर हवा में लटके हुए थे, तो उसको झाड़ियों से निकालने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। इट वॉज डिफ़िकल्टी टू फ्लिंग द बुशेज एंड कुड नॉट लिफ्ट हिम ऑन फ्रॉम विद द फ्रीडम। ओके, सो वो क्या कहते हैं कि वो उसको भी खुद को भी झाड़ियों से निकालना, और उसके हाथ में वो फ़ोन का बचा था, फ़ोन था, उसको भी निकालना, इट्स स्लाइटली बीइंग डिफ़िकल्ट फॉर हिम, ठीक है। बट he tried to shield his face from sprinkling vines। उसके जो छोटी छोटी जो बेल थी उससे उसने उसके चेहरे को बचाने की कोशिश की। Its head blurred with the strikes, his heart thumped with the मर्ल्ड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। लेकिन जो हिरन का बच्चा है, जो फ़ॉन है, वो एक बार भी कोशिश नहीं कर रहा था कि वो उससे उसके बाजुओं से निकल के भागे या उससे दूर हो जाए, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट नज़र आ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि ही वॉज ट्रस्टिंग, एक एक्सेप्टेंस उसको नज़र आ रही थी, दैट ही वॉज एक्सेप्टिंग मी एज अ फ्रेंड। ओके, he reached the trail and walked as fast as he could until he come to the इंस्ट्रक्शन विद द रोड होम। ठीक है, तो वो जैसे जितना जल्दी हो सकता है वो जल्दी ही चल रहा था। ही स्पॉटेड द रेस्ट एंड सेट द फॉन डाउन इनटू द डैंगलिंग लेग्स। ही वेव्ड इन द देम एंड लुक्ड एट हिम एंड ब्लेटेड। अब वो देखो क्या करा, वो एक जहाँ पे जब भी उसको थोड़ा सा सांस लेने की वो हो रही थी कि हाँ मैं थक गया हूँ तो मुझे थोड़ा सा रुकना चाहिए, वो उसके पैरों को समेटने की कोशिश करता, वो उसको समेटने की कोशिश कर रहा था ऐसे। सो ही सेड एंड हंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर गेट माई ब्रेथ। वो कहता है कि मैं, उसने क्या किया, उसने उसको थोड़ा सा नीचे छोड़ दिया। वो कहता है कि जब मेरी सांस ठीक हो जाएगी तब मैं आपको उठा लूँगा। ही रिकमेंडेड हिज फादर सेइंग दैट द फॉन वुड फॉलो if
इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। वो कहता है कि उसके फादर ने एक बार उसको बताया था कि जो फ़ॉन है, जो हिरन का बच्चा होता है, वो आपको फॉलो करता है एक बार अगर आप उसको उठा लेते हैं। सो ही स्टार्टिंग अवे स्लोली, अब वो धीरे धीरे उसने चलना स्टार्ट कर दिया, किसने, जॉर्डी ने। द फ़ोन स्टेयर्ड एट हिम, वो स्टार्ट, ठीक है, जो फ़ोन है वो उसको घूर रहा था। ही केम बैक टू इट एंड स्टॉक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन। वो दोबारा, जो जॉर्डी, अब देखो क्या एक्टिविटी चल रही थी, जो क्योंकि उसके फादर ने बोला था कि अगर आप इसको एक बार उठा लेते हो और अब से दूर जाने की कोशिश करते हो तो वो आपका पीछा करता है, आपके पीछे पीछे चलने लग जाता है। तो जॉर्डी ने भी वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन वो पहले आगे गया, वो जो हिरन का बच्चा उसको घूर रहा था, लेकिन फिर वो दोबारा उसके नज़दीक आया, फिर वो आगे जाने की कोशिश करता है। ही टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप, वो थोड़ा सा बहुत धीरे धीरे उसने स्टेप लिए। फ्रॉम हिज कैरिड पिटियसली, लेकिन जो वो बहुत ही दया तरीके से उसको देख रहा था। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, वो चाहता था कि वो फॉलो करे। इट बिलोंग्स टू हिम, इट वॉज हिज ओन। ही वॉज लाइट हेडेड विद अ जॉय, ही वॉन्टेड टू हैंडल इट एंड टू रन द रूम ऑन विद इट। ओके, सो वो कहता है कि वो चाहता था कि वो उसका पीछे पड़े, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो धीरे धीरे उसके पीछे चलने लग जाता है। एंड कॉल इट टू कम टू मी, और वो उसको बुलाता है कि मेरे पास आ जाइए। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, ठीक है, लेकिन वो उसको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। ही पिक्ड इट अप, वो उसको दोबारा जाने नहीं देना चाहता था। सो व्हाट ही डिड, ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स एंड इट सीम टू हिम दैट ही वॉज वॉकड विदाउट एफर्ट। ओके, सो वो क्या कहता है कि वो धीरे धीरे उसको अपने बाजू में ले जाता है और धीरे धीरे उसको चलाने की कोशिश कर रहा है। तो उसे देख कर ऐसा लग रहा है कि ही विल एबल टू ट्राई वॉक इन हिज ओन leg. So in this video we will discuss till now, and in the next video we'll discuss rest of the part of this chapter. Okay, I hope you completely understand this chapter.